Hello students, today we are going to start mathematics paper 2, that is we can say geometry, and in this mathematics part 2 we are going to start the first chapter, that is the similarity. So first chapter 1, and this is maths 2. Now what is meant by similarity, that we are going to start first here. Similarity का मतलब क्या है? In 9th standard you had already studied the concept of congruency of triangles. Similarity is also the concept which is related to triangles. What is meant by congruent triangles? And what is meant by similar triangles? First of all, we should differentiate these two. What is meant by congruent triangles? Let us suppose these are the two triangles here. This is first triangle P, Q, R, and this is, we can say, X, Y, and Z. Here, this QR is congruent with this, PR is congruent to XZ, and this PQ is congruent to XY. Similarly, this angle is congruent with this angle is congruent with this angle, and this angle is congruent with this angle. That means if any two triangles, if all angles of first triangle are congruent with the corresponding angles, P से corresponding angle X है. अगर हम ये दोनों triangle लिखेंगे, triangle PQR and triangle XYZ. So P is related to X, Q is related to Y, and R is again related to Z. Here we can say here P is congruent with X, angle Q is congruent with angle Y, and angle R is congruent with angle Z. Similarly, the first side PQ is related to XY, PQ side PQ is congruent with side XY. This side QR is related to this side YZ. That means here this QR is related to YZ. Both are congruent to each other. And the side PR is congruent with side XZ. That means here this PR is congruent with this XZ. In this case, these two triangles are said to be congruent triangles. We had already studied this concept in 9th standard. Now the concept of similar triangles. Now what is meant by similar triangles? Let us suppose I am drawing here two triangles. This is first triangle and this is suppose second triangle. The first triangle is ABC and the second triangle is MNP. If the length of this side is 2 and this side is 6, length of this side is 3 and this side is also 3. If it is 4, this is 12. Similarly, if this angle is congruent with this angle is congruent with this angle, and this is congruent with this angle. Two triangles we are considering here, triangle ABC and triangle MNP. ये दो triangle में क्या दिया है? This angle is congruent with this. This is congruent with this, and this is congruent with this. That means about angles, if we say that the corresponding angles of these two triangles, A is related to B is related to and C is related to P, corresponding angles of two triangles are congruent. जैसे यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी corresponding angles of these two triangles were congruent. In congruent triangles, here in similar triangles also the concept about the angles is same. But in case of congruency, the sides also were, corresponding sides of two triangles also were congruent to each other. But here if you carefully observe, the length of this side AB is 2 and here MN is 6. That means here some major differences are there. See, AB is related to MN, BC is related to NP, and this AC is related to MP.
दिस साइड ए बी, अगर मैं रेशियो लूँ ये दोनों साइड का और एम एन, तो ये रेशियो आ रहा है 2/6, दैट इज 1/3. If we take the ratio here BC upon NP, then also here this ratio is 3/9, that is equal to 1/3. Similarly, the ratio of this AC upon MP, because this is AC and this is MP, this is also 4/12, that is 1/3. If we take the ratio of the corresponding sides of these two triangles, then that ratio here in this case is 1/3. For these two sides also it is 1/3, and here also it is 1/3. That means if the ratio of corresponding sides of two triangles is same and the corresponding angles are congruent, then such type of two triangles are called as similar triangles. Congruency में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट थे. अगर यहाँ पे ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी. लेकिन यहाँ वैसे नहीं हो रहा है. यहाँ ये 2 है तो ये 6 है, दैट मीन्स ये रेशियो 1/3 आ रहा है. This 3/9 is 1/3 once again, and this 4/12 also is 1/3. That means the ratio of these sides is same. This is about the congruency and similarity. ये हमने already 9th standard में सब पार्ट क्लियर किए हैं. रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कुछ थियरम्स वगैरह सब हमने ये 9th standard में स्टडी किया है. अब हमें what is meant by similar triangle and what are the properties of similar triangles, this we are going to study in this chapter. But before starting this chapter, first of all we must know some of the properties of triangles. तो ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज कौन से हैं वो हमें ये डिटेल में स्टडी करने हैं. ये तो पार्ट हमें स्टडी करना ही है, लेकिन ये थोड़ा आगे का पार्ट है. इसके पहले जनरल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स की तरफ नहीं जाएंगे और वो प्रॉपर्टीज हम पहले स्टडी करेंगे. नाउ सी, now here are some of the properties of triangles. और ये जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स के, दोज आर रिलेटेड टू एरियाज. नाउ सी हियर, दिस इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी. दिस इज अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर. वन मोर ट्रायंगल आई एम ड्राइंग हियर, एक्स वाई Z. तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स. और एक ट्रायंगल लेते हैं, जनरल ही ट्रायंगल होगा वो. M N P. इसकी लेंथ A है, इसकी B है और इसकी C है. Now here we have to study the area of these two triangles. Sorry, area of all these triangles first of all. What is meant by area? एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जनरली हमें एरिया फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अब ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो इसकी बेस है BC और हाइट पता नहीं है, तो हाइट के लिए हम यहाँ से पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ नाम देंगे. सी दिस इज सपोज A. तो हियर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू, इसका बेस क्या है BC, इनटू ये हाइट क्या है, हाइट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
and what is this perpendicular? It is drawn from the opposite vertex. तो ये है, ये अगर साइड BC कंसीडर करेंगे तो इसका अपोजिट वर्टेक्स A है। A से ड्रॉ किया हुआ जो भी परपेंडिकुलर है साइड BC पे, दैट इज कॉल्ड एज हाइट। तो ये होगी इसकी हाइट। तो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट AD, and therefore area of triangle ABC here is half into ये base है into ये height. This is about the area of this triangle. Now what is the area of this triangle? Area of this triangle is nothing but, see here, if you carefully observe तो P, Q and R already यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। This angle is 90 डिग्री। तो you can take this as base and this as height. जनरली हम जब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये बेस होता है। समझो अगर मैं इसको ऐसा नाम दूं P, Q एंड R, तो ये होगा 90 डिग्री जैसा बेस है और ये हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इन दिस केस क्या लिखेंगे हम? इट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो दैट इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या होगा QR इनटू हाइट क्या होगी PQ। Here in this case we can write, therefore for this figure area of triangle PQR is equal to half into BC, BC क्या है? Sorry, half into base, base क्या है? This is QR and height कौन सी है? That is PQ। अगर ये हमारी फिगर ऐसी होती तो डायरेक्टली हम लिखते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा टाइप जब आता है, ऐसी सेम फिगर अगर आती है तो आपको हाइट और बेस पता होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा रोटेट करके आपको दिया तो बेस और हाइट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज अबाउट दिस ट्रायंगल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस फिगर। नाउ सी XYZ ट्रायंगल, हियर दिस इज वी कैन से दिस एज द बेस, लेकिन यहाँ पे हाइट दी है क्या? नहीं है। तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो पहले इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड करने के बाद डायरेक्टली मैं करती हूँ, ये है, ये बेस का अपोजिट वर्टेक्स X है। इन ट्रायंगल XYZ if you consider this side as base then vertex is opposite vertex is X। यहाँ से जो परपेंडिकुलर वो बेस पे हम ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइट। ये डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं जा सकता है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री में ड्रॉ करना पड़ेगा एंड दिस लाइन सी हियर इट इज नथिंग बट बेस, ये 90 डिग्री। अगर मैं इसको नाम कुछ दूं XM कंसीडर करें समझो, तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज हाइट एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर इन दिस केस ये हो गया बेस और ये होगी इसकी हाइट एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस है YZ इनटू इसकी जो हाइट है वो हाइट होगी XM। यहाँ पे लिखो XM is the height। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली वो दी नहीं थी, तो इसके लिए हमें वो एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसकी हाइट बहुत सारे कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के हमें पहले ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। आफ्टर फाइंडिंग दिस हाइट ओनली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो दिस इज अबाउट द एरियाज। अब कौन सा भी ट्रायंगल कैसे भी आएगा तो वी कैन राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज द जनरल फॉर्मूला वी कैन से, लेकिन और एक मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की। अगर हमारे पास साइड्स होते तो ये तो हमें ये चैप्टर में यूज नहीं करना है, तो भी आपको समझने के लिए बता रही हूँ। ये तो यू हैड स्टडीड ऑलरेडी दिस इन 6th या 7th स्टैंडर्ड। इट इज कॉल्ड हेरॉन फॉर्मूला। क्या होता है? इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन टू यू फॉर योर हायर स्टडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेमी पेरीमीटर is equal to S. What is this S? S is nothing but it is the addition of all these sides upon 2. एक बार आपके पास S आएगा तो directly you can find the area of triangle. Therefore, area of triangle MNP is equal to, ये already आपने स्टडी किया है। पहले S आता है, बाद में S minus A, S minus B, S minus
तो ये सब करने के बाद जो ये वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यूज फाइंड करो, इनका प्रोडक्ट लो, या अगर कुछ आपको जैसे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने आएगा वैसे करो, और जो भी लास्ट फाइनल वैल्यू आफ्टर फाइंडिंग रूट आएंगी दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन से भी टाइप का ट्रायंगल आएगा तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जनरली अभी हमें यही यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का है, वो याद रखो। Yes, now we are going to study the properties of areas of triangles. अब ये properties कौन से हैं? तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, समझो ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल। These are the two triangles. अब हमें क्या फाइंड करना है? इनके एरियाज को फाइंड करना है। दो ट्रायंगल्स दिए हैं तो दिस एंड दिस आर टू ट्रायंगल्स। इनके एरियाज फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी ऑलरेडी हमने स्टडी किया हो टू फाइंड एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, वो फॉर्मूला हमारे पास है। अब हमें इनके रेशियोज फाइंड करने हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रेशियो? अब समझो दो नंबर्स कुछ तो दिया है a और b, ये दोनों नंबर्स का रेशियो अगर लिखना है हमें तो हम ये टाइप में लिख सकते हैं। ऑलरेडी वी स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। ये दो नंबर्स अगर a एंड b आपके पास है, उनका रेशियो a/b लिख सकते हैं, या वी कैन से a:b। यहाँ पे a एंटीसीडेंट कहलाया जाता है, b इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट, और ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, फॉर एग्जांपल a/b इज इक्वल टू 2/3 है, इसका मतलब a इज इक्विवेलेंट टू 2, b इज इक्विवेलेंट टू 3 है या होगा, ऐसे कुछ नहीं, अभी तो आपके पास है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से a/b इज इक्वल टू 10/15 and this is also equal to, we can write 2/3. a/b is equal to, we can say here we can write 4/6. this is also nothing but 2 2s are 2 3s are। तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, a is equal to 2 and b is equal to 3। equal to ऐसे हम बोल नहीं सकते, it may be equal। a/b is equal to 2/3 का मतलब है ये 2/3 हो सकता है, ये 4/6 हो सकता है, ये 10/15 हो सकता है, ये 20/30 हो सकता है, व्हाटएवर जैसे आपको लगेगा वो हिसाब से वो चेंज होता जाता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हमें इनके एरिया फाइंड करने होंगे। देयरफॉर दीज आर द टू ट्रायंगल्स, ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल PQR। तो ये जो दो ट्रायंगल है इनके एरियाज पहले हम फाइंड करेंगे। Therefore, area of triangle PQR, area of triangle ABC is equal to क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट है कि आपको पता नहीं, तो मैंने डायरेक्टली ये हाइट यहाँ पे ड्रॉ करके दी आपको। PQR, ये पॉइंट S होगा, ये पॉइंट D होगा। दिस इज हाइट वी कैन से एज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, and therefore area of triangle ABC is equal to base है BC into height है AD। Similarly, for this triangle, area of triangle PQR is equal to, what is this? half into base, base कौन है? QR है, into height कौन है? PS। तो अब हमें दोनों भी ट्रायंगल के रेशियोज मिले। ये दोनों ट्रायंगल्स है, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज मिले। अब ये जो एरियाज है इनका रेशियो हमें लेना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to
हाफ इंटू BC इंटू AD पहला, और यहाँ पे हाफ इंटू QR इंटू PS ये सेकेंड। अब यहाँ पे हाफ हाफ जाएगा, दोनों भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे। अब ये रेशियो क्या बचेगा, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, ये होगा BC into AD QR into PS। तो अब BC क्या है, it is the base of first triangle, QR क्या है, it is the base of second triangle। In other words also we can write AD height of first triangle and PS height of second triangle। So we can write here BC upon QR into AD upon PS। तो what can we conclude here? अगर हम ये रेशियो वर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तो कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब अपॉन दिस, द रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and the corresponding heights। The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their corresponding bases and the corresponding heights। आया समझ में? ये दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग बेस है, ये बेसिस है, ये हाइट्स है, ये दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा, दिस रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। एंड हेंस वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एरिया, वी कैन से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग थे, इनके बेसिस अलग थे, इनके हाइट्स भी अलग थे। अब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी स्टडी करना है, अगर ऐसे ही दो ट्रायंगल्स होंगे कि जो दोनों भी ट्रायंगल का बेस सेम होगा तो क्या होगा, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो उनका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरियाज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ऐसे ही दो ट्रायंगल्स रहेंगे, उनकी हाइट अगर सेम होगी, उनके बेसिस अलग रहेंगे, हाइट सेम रहेगी, तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। This also we are going to study here।